जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द आवर चैनल स्मार्ट एसएसटी गुरुजी चैनल। ओके दोस्तों मित्रों, मैं फिर वापस आया हूँ आपको लोकतंत्र को एक नए अंदाज में समझाने के लिए। एंड दिस वन पार्ट इज़ द टोटली क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. It's not for the class 9th, it's for class 9th and 10th also, because in democratic politics, the class 10 there is a one chapter democracy. There are the different dimensions of the democracy and challenges to the democracy. Then in that scenario it's a very important to discuss about this. Is it so? ये पहली बार ये होने जा रहा है आपको सीबीएसई के क्लास 9 चैप्टर व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी को एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको कुछ डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन रेफर टू द माई वीडियोज़ फ्रॉम द पार्ट 1 to 6. ओके फ्रेंड्स, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा. एक बार तो ये जान लो दोस्तों कि जब सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी. तो आप इंस्पायर रहिए, बिकॉज दिस पीरियड इज़ वेरी टफ फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस. So you have to maintain both mental and physical balance and save energy, consume energy for doing the more better in the world for upcoming times. Okay, so important questions explanation for this chapters. Ready? The first question is why democracy is called as a better form of government in the world. डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्या बात है, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, बट यहाँ भी देखेंगे. What are the points in the favor of democracy? Same question. There is the question may be asked in your examination in a different way. So I am putting here to the different form of the question, but answer is same. So be patient. As it's we are going to be touched. So how does democracy promote enhance the dignity of the citizens? लोगों की dignity, citizens की dignity, सम्मान को कैसे बढ़ाती है, promote करती है democracy. Democracy may be questionable at that period. Is it? Next question is how does the उंगली का सही इस्तेमाल करें. सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें. democracy improve the quality of decision making? Quality of decisions making वो कैसे बढ़ाती है जो है, ठीक है. And why is democracy considered the best form of the government? Is it? इसको best form of the government क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन देखिए एक ही है, सबका आंसर एक ही है. हो सकता है ये किसी का एक फीचर्स उसको बना के क्वेश्चन बना दिया गया हो. सो डोंट वरी. Is it? The answer is same, and if you refer to the previous video so you can better understand. But let's start. What the answer? Number 1, democracy is better form of government. Why? Because it respond according to the need of the peoples. क्यों है? क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम करती है. आज हमको ज़रूरत जिस चीज़ की है, हमारी सरकार, क्योंकि वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे लिए अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. तो दिस इज कॉल्ड एज द नीड ऑफ द पीपल. अगर हमको आज किसी चीज़ की जरूरत, जैसे फॉर एग्जांपल इन कोविड-19 इफेक्ट, इन कोरोना इफेक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर डूइंग ओवर देयर जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज, इट्स अवेलेबिलिटीज. there are the movement for the migrant workers. That's the biggest challenge for the central government and state government respectively, but they are doing, they are using, they are participating, and they want to resolve these problems. Some of the government, maybe the some status they may be the failed, is it, but they are trying their best. So democracy is the according to the need of peoples. आज लोगों को अपने घर पहुंचाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है. Next is democracy is a better form of government because it's a more accountable form of government. Accountable क्या है? अगर कुछ हो जाएगा तो who can responsible? So you can't find the such kind of features in any other part of the government. So you can find only the democratic government. Is it? The government is accountable है, responsible है, legitimate है. Is it? Democracy is based in the consultation and discussion. जब हम किसी तरह कंसल्टेशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, तो हमारी जो क्वालिटी होती है डिसीजंस मेकिंग की वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है. सो दैट्स वाई इन ए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यू कैन फाइंड द क्वालिटी डिसीजंस मेकिंग. इट्स टेक ए टाइम, इट्स टेक ए डिले, इट मे बी द डिले, बट द decisions is very good because it's applicable to all. Next one, argument for the democracy. What are they same things. Since democracy provides a method to deal with the differences and conflicts. You know,
in there are the different type of differences and conflicts exist in the society because they are the many of the people, they are belongs to the different caste, religions, society, race, colors, language, is it? बट इसका सॉल्यूशन अगर आपको प्रजातंत्र और लोकतंत्र में ही मिलेगा बिल्कुल आसान तरीके से, बिकॉज इट्स डिबेट एंड डिस्कशन मेथड। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की है, सबको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। यू कैन गो एंड विजिट इन राज्यसभा एंड लोकसभा सीट्स 543 is it now in Lok Sabha and Raj Sabha 250. So you can find what kind of the what kind of the representation of the peoples are member of parliament on the basis of language and religions, is it? So it might be a more clear. And democracy में कोई भी permanent winner और कोई भी permanent losers नहीं होता, ठीक है? जो आज विनर है वो कल लूजर होगा, जो लूजर है वो विनर होगा। डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, लोगों की डिग्निटी को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड द पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग द पुअरेस्ट एंड लिस्ट एजुकेटेड हैव अ सेम स्टेटस। जो पुअरेस्ट है, लिस्ट स्टेटस रखता है, कम पढ़ा लिखा है, उसका भी उतना ही रोल है जितना कि ज़्यादा पढ़े हुए आदमी का और रिच पीपल्स का, ठीक है? ऐसा नहीं है कि गरीब की इंपॉर्टेंस कम है, अमीर की ज़्यादा है। हाँ, इट मे बी इन ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी यू कैन फाइंड इट्स टोटली डिफरेंट, is it? So it's depend upon the circumstances and situations of the particular country. Clear? Next, it's allow the correct our mistakes. अगर हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो हमें इस मिस्टेक्स को सही करने का समय मिलता है, मौका मिलता है, अवसर मिलता है। हम इसे डिबेट और डिस्कशन के थ्रू हमारे पास जगह है कि हम इसको सही कर सकते हैं। Is it? So next, there are some of other questions also. Describe the major argument against democracy. अभी तक बात हम फेवर में कर रहे थे, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स होता है, चाहे वो फॉर में पूछे चाहे वो अगेंस्ट में पूछे। मेंशन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के जो एसेंशियल फीचर्स हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स हैं, बताइए क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। डेमोक्रेसी में हम पढ़ते हैं फाइनल डिसीजंस मस्ट बी पावर विच इज होल्ड बाय द रूलर्स विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जो पीपल्स के थ्रू जो इलेक्ट किया गया उसी के पास जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रहती है। और क्या फीचर्स हैं? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये फ्री और फेयर इलेक्शन के बेस पे होती है, जिसमें फेयर चांस ऑफ लूजिंग है, फेयर चांस ऑफ विनिंग है। ये दोनों हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है? द एडल्ट सिटीजन्स, जिसको वोट देने का राइट्स है, एंड वन वोट वन वैल्यूज होता है। एंड डेमोक्रेटिक रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ। और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस बने होते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू हमारी गवर्नमेंट चलती है और लोगों को राइट्स मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल राइट्स। इफ यू गो इन योर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 देन आर्टिकल 12 to 35 there are the many fundamental rights has been described. Is it what? Freedom of speech and expression. Is it freedom against exploitations, right to adopt any religions, constitutional remedies? There are so many rights. Next, explain how popular government can be undemocratic and popular leader can autocratic. ऐसा भी होता है कि हमने देखा कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, एंड पॉपुलर लीडर्स इट कैन बी द ऑटोक्रेटिक, है कि नहीं? ये भी हो सकता है, हमने पढ़ा है इससे पहले, ठीक है? आप याद करिए चाइना का सीन, आप याद करिए चानो पीएफ पार्टी का सीन, इज इट? आप याद करिए जनरल परवेज मुशर्रफ का सीन। सो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द अमेंडमेंट जनरल परवेज मुशर्रफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाय द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002? ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो उसने क्या किया था? सिंपल है, प्रेसिडेंट ने उसके प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में, और प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता था नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को। नंबर 1 थिंग्स। सेकंड थिंग्स, द वर्क्स ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वाज टू बी सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसको उन्होंने बना दिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। कौन देखेगा? जो सिविलियन कैबिनेट की सारी वर्क है उसको सुपरवाइज करेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनएससी करेगी। और एनएससी को हेड कौन करेगा? मिलिट्री ऑफिसर करेंगे। थर्ड थिंग्स क्या किया उसने? इलेक्शंस जो होंगे वो हेल्ड होंगे नेशनल और स्टेट असेंबलीज के, बट द फाइनल पावर किसके पास है? मिलिट्री ऑफिसर की। और मिलिट्री ऑफिसर कौन है? जनरल परवेज मुशर्रफ है। दैट्स इट। यही 3 मेजर चेंजेस हुए थे।
अब वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आराम से देखिए और नोट्स बनाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? अब आप बताइए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट वीडियोज़ का, जिसमें ब्रॉडर मीनिंग क्या है भैया, हमने जो डेमोक्रेसी जो अडॉप्ट की है। अब चूंकि डेमोक्रेसी में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम इंडिया का लेते हैं, 130 करोड़ पीपल्स को एक जगह बैठा के तो हम डिसीजन नहीं ले सकते ना, जगह भी हमारे पास नहीं है और सबकी आवाज़ भी हम उतनी इफेक्टिवली नहीं सुन पाएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हमने जो अडॉप्ट किया, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मीन्स हमने कुछ पॉपुलेशन कुछ एरिया पे एक पर्सन को फिक्स कर दिया, जिसको हम लोग एमएलए और एमपीज बोलते हैं, ठीक है, एमएलसीज बोलते हैं। वो लोकसभा राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपकी एरिया से चुन के आएगा, वो पार्लियामेंट में बैठेगा और आपकी आवाज़ आपकी प्रॉब्लम्स को वहाँ तक पहुँचाएगा, ठीक है। पहला नंबर काम किया। दूसरा क्या है? इलेक्शंस टू बी हेल्ड टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शंस होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, इट्स एंड उसमें उनको अलाउ किया जाएगा किसमें? पार्टिसिपेट टू टेक द इलेक्शंस। थर्ड थिंग्स क्या है इसमें? तो कैन बी अप्लाई टू द एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी किसी भी लाइफ के स्फेयर में अप्लाई होनी चाहिए। लाइक डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक फैमिलीज होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक एसोसिएशंस होने चाहिए, डेमोक्रेटिक ग्रुप्स होने चाहिए, इट्स इक्वल इंफॉर्मेशन मिले, बेसिक एजुकेशन हो, इक्वल रिसोर्स हो, नो वन गोज टू बेड हंग्री, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी कंट्री में, देयर इज नो एनी द ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेफिनेटली नहीं है। दैट्स सो दैट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। केवल डेमोक्रेसी किताबों में नहीं है, प्रैक्टिकल फॉर्म में देश की हर समस्या का समाधान डेमोक्रेसी में होना चाहिए। इट्स व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? यह आपका टास्क है, खोजिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या हो सकता है। मैंने इसको पीपीटी में लिख के नहीं बताया है, आप खोजिएगा, यह आपका टास्क है। फिर भी मैं हिंट्स कर देता हूँ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहला क्या होता है देखो, इलेक्टेड बाय द पीपल्स, जो रूलर्स होगा वो पीपल्स इलेक्टेड होगा। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होगा, या तो वो मिलिट्री ऑफिसर्स होगा, लाइक म्यांमार का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सऊदी अरबिया का ले लीजिए, पाकिस्तान का ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे रूलर्स इलेक्ट नहीं होगा। सेकंड थिंग्स, सिटीजन्स को बहुत सारे फ्रीडम्स मिलेंगे, किसमें? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जरूरी नहीं कि उसको फ्रीडम मिले, मिलेंगे भी तो बहुत ही मिनिमम मिलेंगे, ठीक है। दे कांट फॉर्म एनी एसोसिएशन, ग्रुप्स, रैलीज, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होता है? थर्ड थिंग्स, मेजर डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू जो है मेजर डिसीजंस लिया जाता है, बट इसमें कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, इसका मतलब दिस वन इज ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कह सकते हो आप, ठीक है। डेमोक्रेटिक में एडल्ट के लिए 1 वोट 1 वैल्यू होता है, और ईच वोट का प्राइम मिनिस्टर से चौकीदार तक सबका वोट बराबर है, सबकी वैल्यू 1 है। बट नॉन डेमोक्रेटिक में जरूरी नहीं है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को ही राइट टू वोट नहीं था, कई जगह पे राइट टू वोट प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है, अगर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो आपको ये वोटिंग राइट है, अदरवाइज नहीं है। कहीं मेंस को है, वुमेन्स को नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फंक्शन होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स राइट्स के अंतर्गत होगा। वहाँ डेफिनेटली डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही पूरी गवर्नमेंट चलेगी, सिटीजन्स को राइट दिए जाएंगे। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। लाइक रॉबर्ट मुगाबे बहुत ही पॉपुलर लीडर्स था, बट ही इज़ ऑटोक्रेटिक नॉट ए डेमोक्रेटिक, बिकॉज उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके अपने आप को मोर पावरफुल बनाया और लेस अकाउंटेबल बनाया। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जो है जिम्मेदारी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, सिटीजन्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी में कौन कौन से पॉइंट्स है वो आप यहाँ देख सकते हो। चेंजिंग ऑफ लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स का चेंज होना, हर 5 साल, हर 4 साल, हर 6 साल पे लीडर्स चेंज हो जाते हैं, तो उससे इंस्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में। हो सकता है कि पहली वाली गवर्नमेंट जो वर्क कर रही थी उसको नेक्स्ट गवर्नमेंट ना करे। जैसे आप अपने एग्जांपल ले सकते हो अपनी कंट्री का, बीजेपी और कांग्रेस। हो सकता है कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलाए होंगे, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट गवर्नमेंट में नहीं कैरी फॉरवर्ड किया।
हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रोग्राम पॉलिसीज़ बनाई हों जो फ्यूचर के लिए 2020, 2040, 2030 तक का प्लान बना हो, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट अगर 2024 में चेंज हो जाए तो हो सकता है वो उसको न लेके जाएं, कुछ अच्छी बेटर प्लानिंग कर लें। सो इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर गेम। ये पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर का गेम होता है, केवल सत्ता हासिल करने का गेम है। ये इसकी डिमेरिट्स हैं। बिकॉज ऑफ द मोर डिस्कशन इट्स टेक मोर टाइम, ज़्यादा समय लगता है। डेफिनेटली अगर डिबेट और डिस्कशंस होंगे, मेनी पीपल्स इन्वॉल्व होंगे, मीटिंग्स होंगी, तो टाइम तो लगना ही लगना है। इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, जैसा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े भी लिखे भी नहीं होते हैं उस, और बहुत सारे अच्छे लोग तो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहे हैं, आप देख रहे हो जो है। तो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ अच्छी है, तो वो कैसे डिसीजंस को करेंगे। ओके, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन, करप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है बिकॉज इलेक्टोरल कंपटीशन है। आप वीडियोस को अगर डिटेल से देखेंगे, पिछले वीडियोस को 1 to 6 पार्ट्स को, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा है। नेक्स्ट थिंग्स, ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज द गुड फॉर देम, वो उनको पता ही नहीं है, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, उनको पता ही नहीं चलता ऑर्डिनरी पीपल्स को क्या पता व्हाट द बेस्ट थिंग्स इज इट्स। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी, बट एक चीज़ याद रखिएगा, इट्स नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन। ये कोई ऐसा मैजिक्स नहीं है, जादू नहीं है कि हाथ घुमाया और सॉल्व हो गई प्रॉब्लम्स। इट्स, इसको मिलजुल के ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ़ यू वांट टू कमेंट्स एनीथिंग सो यू कैन कमेंट्स। क्लियर, बस इस वक्त जो है, मुश्किल वक्त में अपने आप को संभाल के रखिए, पढ़िए, क्योंकि आपको पता है जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना बहुत तेज़ है। मजाक मजाक में एक बात बोल देता हूँ, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है दोस्तों, इसे बेबी, बाबू, सोना, मोना, धनिया, पुदीना के चक्कर में बर्बाद ना करें जाए। पढ़ें, वक्त मिला है, इस लॉकडाउन का अच्छे से उपयोग करें। उंगली का सही इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। टाटा ने कहा है, रतन टाटा ने, कि इतनी मेहनत करो कि 5 साल बाद भी कहीं जाओ तो उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो।